will cover industrial safety and occupational health part, which is extended part of the EHS. It's an important session. I'm sure it will be around 1 hour plus session. Then you will get some idea about the interview preparedness, how you have to be prepared yourself for the interview by Mr. Pushpendra. So this is what our curriculum in last 4-5 days. Yes, tomorrow we will going to be organized exam based on all those which we have learned yet. Till today evening, you will receive the Google Drive link where all the documents, all the details will be there, all the presentation will be there. So I would request to everyone kindly read, study, and then prepare yourself for tomorrow exam. So examination is important. It will be online through the Google form, and it will be open for a specific time. For an hour. Our time we will open it, you will attend it, and then automatically it will not allow to you further to attend that one. So this is the entire program agenda already shared to you. I think this is for now. Yeah, and any point, others? Sir, hi sir, good evening. Sir, what time will be tomorrow examination, sir? Kevna, what is the timing we have kept for the session? It's the same time, and on the first day we Have said you that checked the timing? yes sir. On the initial day we asked it that what the participants wants to do, and basically we have on 6 to 8 only, same time, and it's for 1 hour. Okay, 6 to 8. It's a 6 to 8. Thank you, sir. If everyone is ready to attend in an early first half or second half, first half, then we can plan accordingly. So that's the issue. So that will be online. We will share you the link. You just attend it within the time period and close it. That's it. So there is no online meeting and discussion for that. You just open it and attend it. If you have any challenge, just check with the Kevna. Yeah. So shall we start, Kevna? Yes, maybe we can start. Okay, so good evening everyone. Our first session is with Mr. Anurag Pathak. He is a distinguished figure in the EHS and ESG domain as well, boasting over 9 years of expertise and presently serving as the EHS and ESG head at Eureka Forbes Limited. His career span notable since at Dabur India Limited, Patanjali Ayurved Limited, and among others also. So his unwavering dedication and adore for his profession prepare his success. So while his ongoing efforts strive to elevate societal attitudes towards EHS and ESG standards. So let's have one more session of the Mr. Anurag. So over to you. You are unmute, sir. Please unmute yourself. Yeah, thank you very much, Kevna. And it's nice to listen about myself in the platform. And thank you, Dr. Priyank Arya, also for inviting me as a guest in this platform. So, can we start directly? Yes, you can start. Hope my screen is visible. Kevna, my screen is visible. Yes, visible. Yeah, yes, Anurag, it's visible. Okay. So,
For the next 1.5 hour or 1 hour, I am with you, all of you, and having a discussion related to the occupational health and safety. So this is the training. So it's my humble request कि हम ट्रेनिंग में क्वेश्चंस पूछते रहें. टॉपिक के बीच में भी आप पूछ सकते हैं हमसे, और please be frank while asking any such type of questions with me. So I am unable to see the chat box, so it's a humble request with the EHS services team. So कि अगर आप कोई chat में आता है तो let me know in the meantime, क्योंकि मैंने स्लाइड कर दिया है तो स्लाइड शो 2-3 मिनट कुछ भी दिखाई नहीं देगा अभी फिलहाल. So this is the contents of our today's class. First is the introduction, occupational health. Then later on it is industrial safety, control measure, electrical safety, fire, good practices, example, and open for discussion in the last. So currently I am working in the Eureka Forbes Limited company. We are manufacturing the AquaGuards, what आप लोग जो अपने घर पे यूज करते हैं, डोमेस्टिक एज वेल इंडस्ट्रियल ऑल्सो. सो यूरेका फोर्ब्स थोड़ी सी ऐसी कंपनी है जो पहले इंडियन वेंचर्स के साथ कोलैबोरेशंस में चलती थी. अभी इसको टेक ओवर किया है एडवेंट इंटरनेशनल से, while acquiring 72% of the stakeholder of ours. So we basically manufacturing the AquaGuards. So ये हमारे AquaGuards हैं. We also manufacturing the vacuum cleaners, air purifiers. कोविड से पहले ही हमारे पास एयर प्यूरिफायर्स बहुत पास्ट ईयर से हम सेल कर रहे थे. हमारे पास एक सस्टेनेबिलिटी की लोग बात कर रहे हैं. अभी हमारे पास सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारा एक पूरा का पूरा कस्टमर केयर डिवीजन है जो हमारे यहाँ पे इंडिया में डिसेबल्ड पर्सन हमारे लीड करते हैं. तो हमारा एक ऑफिस ऐसा है जो हमारे बहुत पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी में. हमारा एक इंस्टीट्यूट भी था 2000 में, हमने इनोवेशन किया था, यूरेका फोर्ब्स इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट, एंड वी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एज द SDGs. हम SDGs पे भी काम करते हैं यहाँ पे. और नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ. सो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं. ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक ऐसी टॉपिक्स है जो कि स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं. जैसे कि इट माइट बी हैपन कि मैंने डॉक्टर प्रियांक आर्या जी का लेक्चर्स लिए हैं, तो उन्होंने आप लोग को जरूर ये चीज बताया होगा कौन हमारे फ्रेंड्स हैं. Are we recording this session? Yes, sir. We are recording the session. Yeah. Sorry, Anurag. Please continue. थैंक यू सर. सो डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया होगा जरूर से कि कौन से हमारे इंडस्ट्रीज में फ्रेंड्स हैं, कौन हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं. सो सबसे पहले ही आपका देखिए दोस्त आ गया सामने, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. ये EHS फील्ड में, सेफ्टी के फील्ड्स में सबसे ज्यादा जो चीजें सर ने आप लोग को बताई होंगी वो बताई होगी स्टैट्यूटरी की, कि हमारे दोस्त कौन से, लीगल डिपार्टमेंट, CPCB, PCC, ये सर आपको गाइड किए होंगे पहले अपने लेक्चर्स में. CGWA एंड ऑल द एक्स्ट्रा रेगुलेटरीज जो हमको हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए. उसी में से एक आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसके तहत में हम बात करते हैं, चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, रूल्स हैं. तो हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की. तो इसमें जो फंडामेंटल्स कहता है कि अगर आपकी जो मैन पावर है वो 500 से 1000 के बीच में रहती है तो हमें फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर चाहिए, 1 नर्स चाहिए, 1 ड्रेसर कंपाउंडर चाहिए. अब 1000 के ऊपर जाएंगे अगर आप, मैं बेसिकली 500 से 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चीजें हैं तो हम इसको मेंटेन करते हैं यूरेका फोर्ब्स में. सो वी आर मेंटेनिंग फॉर्म 7 फॉर हेल्थ रजिस्टर, सर्टिफिकेशन ऑफ फिटनेस. इवन इसमें फॉर्म 18 हम आप देखेंगे. फॉर्म 18 इज अ जनरल फॉर्म फॉर डेंजरस अफेरेंस इनसाइड द प्रीमाइसेस. तो फॉर्म 18 है. फॉर्म 18A है नोटिस फॉर डेंजरस अक्यूरेंस, अगर डेथ हो जाती है बॉडी उसके लिए है. और अगर कोई पॉइजनस डिजीज होता है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 19 है. बट इट माइट बी हैपन कि ये फॉर्म्स नंबर जो आपके यहाँ पे हैं, आपके स्टेट्स वाइज ये वेरीज करते हैं. सो हमें जिस स्टेट में काम करते हैं उस स्टेट का फैक्ट्रीज रूल्स जरूर पढ़ना चाहिए जिसमें फॉर्म नंबर वेरीज होते हैं. विद इन दिस जो हमने बात की इसमें हेल्थ चेकअप की, उसमें हम दीज आर द थिंग्स विच वी आर कवरिंग. ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज फॉर्म, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कैंटीन वर्कर, फूड हैंडलर, सेपरेशन मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर मेनी ऑफ द अदर्स. इसमें हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका बहुत बेनिफिट्स है. इसको मैं स्लाइड शो से हटा सकता हूं तो अगर आप लोग वो कर दें परमिशन तो.
तो इसमें क्या है कि हम ये करते क्यों हैं? तो कोई आंसर देना चाहेगा इसमें कि हम इसको क्यों करते हैं? हेलो आदर्श, आदर्श बताना चाहोगे आप कि हेल्थ चेकअप क्यों करते हैं हम लोग? सर गुड इवनिंग सर। हेल्थ चेकअप इसलिए करते हैं ना कि सर साइट पे अगर कोई भी वर्कर आ रहा है, इन द केस ऑफ कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, तो हमारे पास में उस टाइम पे ये एविडेंस रहता है कि वर्कर फिजिकली फिट था और इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। सर कोई भी अगर वर्कर ऐसा है उस टाइम पे ये हमें जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये सब चीजें सेफ्टी डिपार्टमेंट को एक तरह से बताता है कि सर आपने उसके लिए क्या प्रिवेंटिव वो लिया था सर, प्रिवेंशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आदर्श आपने। एंड सेकंड को बताना चाहेगा अनुश्री। सर वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है सर एम्प्लॉयज की, ताकि हमें ये पता रहे कि कोई एम्प्लॉय किसी बहुत क्रोनिक डिसीज से तो नहीं मतलब सफर कर रहा है। प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर एम्प्लॉयज की, ताकि वो स्ट्रेस लेवल हैंडल कर पाए, तो रेगुलर होती है। ओके फैज, आप बताना चाहोगे कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? फैज अहमद। फैज, आर यू देयर? एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग एक्स्ट्रा जो इन्होंने बताया अभी, आदर्श ने, अनुश्री ने, उसके एक्स्ट्रा को बताना चाहता है कुछ इसमें? ओके Sir, someone is asking that please speak in English. Okay, if anybody wants to add any of the important points related to the health checkup which we are having in industries, so if anyone wants to say something related to this, it's the open platform for them. So if anyone wants to say, please go ahead. If not, then it's okay. I can move forward by telling you something different. Okay, fine. So we are doing the health checkup because of the many reasons. First, chronic disease is the answer. Second, what is the stress level? We have to check the stress level of the worker as well as the employee. So a point number 1 is for the occupational health services forms, periodically medical checkup examination of the contract employees. We are also having our checkup as an employee. We are also having our checkup, and there is a policy for all of us to have a health checkup periodically of 1 year, especially for the workers who is handling our hazardous waste. That point is not present here because they are handling the hazardous waste, biomedical waste. There are many types of wastes are also present. So उनके लिए भी कंपलसरी होता है चेकअप कराना। और जैसे कि प्रियांक सर ने आप लोग को बताया कि these are the rules which is framed by central government. ये सारी लाइंस, ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं और हमें we all have to follow the same rule and regulations, and for the implementation point of view, our friends are always there with help, and our friends is rule and regulations what the legal is going to give us. Okay, there are normal checkup are present in the Practice Act 1948, that is twice in a year. There is a history of the questionnaire, what you have told, the same thing. Occupational hazards. Can anybody tell me the definition of hazard in a simple line? Hazard. Sir, hazard is a kind of any mishappening happen to any sort of living being or any sort of machines. It is not specifically to any materialistic thing, but it also can harm to a human being also. Okay, but whatever you told about the hazard, can anyone tell me again in a single line what is hazard? Single line. Sir, potential to harm. Definitely. Who says this? Bhuvender? Yes, sir. Okay.
So we have to clap for the Bhuvender. It is a simple line answer. Potential to cause anything having the potential to cause harm is called hazard. So we have to clap for it. Just a simple example. There's a simple guidelines for all of the participants. कि at the time of interview, हम स्टोरी बिल्कुल ना बताएं किसी को भी, और हम जो कोशिश कर रहे हैं, what we are trying to deliver in these sessions, especially me, we have to focus on the single line answer that is easy for you as well as for us also to understand. Okay, so we all have to appraise Bhuvnesh for giving a single line answer. Hazard is a such type of thing which have a potential to cause harm, that is called hazards, and there are many types of hazards which are present in the industries. Likewise, 1, 2, 3, 4, 5, which is mentioned in the PPT, and that screen is showing to all of you. Physical hazard, chemical hazard, biological hazard, mechanical hazard, and psychological hazard. Sorry, sociological. So, there is a type of hazard जिसमें harm होता है, उसको उस hazards को कम करने के लिए what we have to follow, there are many several types of methods like engineering control, safe practices control, administrative control, PPEs. There are many. मतलब आपको ये बताएंगे आगे. We will go move forward for this. Okay. But these are the methods to prevent from the particular hazards. हम ये methods follow करते हैं industries में. ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट थर्ड पार्टी के डॉक्टर्स होने चाहिए. ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होना चाहिए हमारे यहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर्स की सिटिंग प्लेसेस हो, जहाँ पे हमारे मेडिकल टीम बैठ सके, जहाँ पर हमारी नर्स बैठ सके, उसके हिसाब से वहाँ पे पूरा प्रावधान किया जाता है, मतलब डेवलप करते हैं हम लोग ऐसी प्लेस को इंडस्ट्रीज में. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी. So, can anybody tell me what do you mean by safety in a single line? Yeah, Bhuvnesh. Adarsh want to say. Yeah, Adarsh, please go ahead. Sir, it means to save man material at project site. Okay. Fine. Anyone other wanted to say? Yeah. बोलिए अरुण. Arun, do you want to say something? Arun, yeah. The protection of people from physical injuries, sir. Please pardon. The protection of people from physical injuries, sir. Okay, physical injury से उनको बचाने के लिए. ठीक है, good. Anyone else? Anand Raju ji, do you want to say something? Divya. Sir, it is avoiding the harm or the hazard. Okay. ठीक है. All जितने लोगों ने अपनी definitions दी है, all the definitions are good and correct. Moreover, the first one is right. Okay. So, a simple definition for learning all of you. It is a condition which gives us freedom from unsafe act and unsafe condition. बहुत ही सिंगल शब्दों में, it is a conditions which give us freedom from unsafe act and unsafe condition. अब वो मैन के लिए भी हो सकती है, मटेरियल के लिए भी हो सकती है, मशीन्स के लिए होती है, जिससे भी वो कंडीशंस आ रही है उससे आपको फ्रीडम दिलाई जाती है. दैट इज कॉल्ड सेफ्टी फॉर मैन, मटेरियल, मशीन्स. ओके. एंड द सेफ्टी फ्रीडम्स भी नॉट 100% फ्रीडम की आपका दुर्घटनाएं नहीं होगी. वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, हो सकती हैं. इसके लिए हम कंट्रोल मेथड्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, मैनेजमेंट कंट्रोल, लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल दैट इज पीपीस, वो लगाते हैं हम. तो सेफ्टी का अलग अलग शब्दों का मतलब भी है. दैट इज कॉल्ड एस डिनोट फॉर मैनेजमेंट सिस्टम, ए फॉर प्रॉपर एटीट्यूड, एफ फॉर अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल, ई फॉर एक्सपीरियंस, टी फॉर टाइम टू डू थिंग्स सेफली, एंड वाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन योर पार्टिसिपेशन. Here it means yours means your organization's persons, your organization's employees, your organization's manpower. तो सेफ्टी एक ऐसी चीज है जो
आप अकेले कभी भी ड्रिवन नहीं कर सकते. आप यू नीड सपोर्ट for whole team members, not for the safety team. I'm talking about the different verticals also, like engineering teams, आपकी like productions team, like आपकी quality team. उन सबके support से, उनके participation से safety होता है industries में. So basic है इसमें कि समझने के लिए कि we cannot run the show until and unless जब तक हमारे पास सबका साथ नहीं होता. So हमें सबको साथ लेके चलना है सेफ्टी में, और सबका पार्टिसिपेशन जरूरी होना चाहिए इसमें. ओके, अब इसमें आपने देखा होगा यहां पे आ रहा है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन इन द डेफिनेशन ऑफ माई सेफ्टी. सो अनसेफ कंडीशंस क्या है? दीज आर द हैजार्ड्स दैट हैव अ पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और डेथ टू एन एम्प्लॉय. अनसेफ एक्ट क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क. किसी को इसमें डिफरेंशिएट पता है अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस में? एक लाइन में हिंदी में किसी को भी? एनीवन ऑफ यू? आप लोग खुद ही अपने आप को बोलने के लिए वो करो, मतलब हम. हाँ बताइए. किसी को नहीं किया. सर अनसेफ एक्ट का मतलब होता है कि जो हमारी गलती से हो. अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है जो मैंने सुनाई नहीं दिया. अगर आपकी पीछे से आवाज आ रही है काफी. सर मैं कह रहा हूँ ना कि अनसेफ एक्ट का मतलब होता है कि जो हम लोगों की गलती से हो. कंडीशन का मतलब होता है जो मैनेजमेंट की गलती से हो. एनी एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल फॉर दिस? सपोज दैट सर, जैसे मैं फील्ड में जा रहा हूँ और मेरे को पता है कि मेरे को हेलमेट पहनना है. मैंने हेलमेट लेने के बाद में भी उसको उतार लिया. इट्स कॉल्ड अनसेफ एक्ट. ओके. और अनसेफ कंडीशन का मतलब ये है कि सर कहीं पे मेरा कंक्रीट या कोई काम ऐसा स्टार्ट होने वाला है और वहां पे कोई ऐसी चीज है कि मेरे को प्लग लगाना है या कोई ऐसी चीज लगानी है और मेरे को मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो अनसेफ कंडीशन. ओके फाइन, थैंक यू. हाँ भुवनेश, गो अहेड. Sir, oil spillage is an unsafe condition. The workers who passing the way without seeing that it can unsafe act, sir. So like writing records or speaking on phone. नहीं, Bhuvnesh is talking or somebody else? Bhuvnesh, yeah. So without seeing it, somebody is passing the oil spillage, तो वो अनसेफ एक्ट कैसे हो जाएगा? वो तो देखा ही नहीं उसने वहां पे. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. वो तो देखा ही नहीं, और उसने देखा नहीं ना उस चीज को कि उसे स्पिलेज है. Bhuvnesh, are you able to understand me? Sir, can you explain in English? Definitely. If the person is not able to see the oil spillage in any of the area and it pass away on that area zone, so is this unsafe act? Sir, not like that, sir. They are not they are not washing properly in the pathway, or not properly do some other work while walking, like writing records, speaking on phone. Okay, fine. Okay, so जो ठीक है, दिस इज राइट एग्जाम्पल. ओके, सो अगर इसमें और डिस्कशन चाहिए होगी तो हम लास्ट में कर सकते हैं. ठीक है, अगर किसी को इश्यूज होगा तो बताएगा, तो लास्ट में मैं आई विल एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट बोर्ड ऑल्सो. ठीक है, देयर इज एन वन लाइन आंसर फॉर दिस वर्ड इंसिडेंट, an unplanned undesired event that adversely affect the completion of a task, or you can say incident ranges in severity from near miss to fatal accident, that is written in the OSHAs. Okay, एक्सीडेंट की भी डेफिनेशन एज पर द IS कोड 3786 के हिसाब से आप बता सकते हैं सबको. एन अनइंटेंडेड अकरेंस अराइजिंग आउट एंड इट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन रिजल्टिंग इन इंजरी इज कॉल्ड एक्सीडेंट. आपके एक्सीडेंट उस चीज को बोला जा रहा है. ये जो भी डेफिनेशंस आपके लिए है, द डेफिनेशंस व्हाट वी आर टेलिंग यू इन द PPT, दैट डेफिनेशंस इज ओनली फॉर द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. कोई भी हादसा, कोई भी एक्सीडेंट, नियर मिस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन से कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं, एनी सच टाइप ऑफ इंसिडेंट और एक्सीडेंट इज गोइंग टू बी हैपन इनसाइड द इंडस्ट्री, देन ओनली वी कैन से दैट इज अ एक्सीडेंट. आउटसाइड द प्रीमाइसेस होता है तो उसमें इंडस्ट्रीज का मेजर रोल नहीं आता, लेकिन इनसाइड द प्रीमाइसेस होता है तो उसमें मेजर रोल इंडस्ट्रीज का आता है.
ठीक है। लास्ट टाइम अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड आपको बताया फॉर्म नंबर 18, 18A, 19 अगर प्रीमाइसेस के अंदर होता है, प्रीमाइसेस के अंदर होता है, या फिर एनी ऑफ द एम्प्लॉयज गोइंग आउटसाइड फॉर द वर्किंग फॉर दैट इंडस्ट्री वर्क, then it can be happen. We have to fill the forms. If it is going for the anything else, not telling anybody and having this type of injuries, so that is not depend upon the industries. उसके लिए हमें फॉर्म भरने की जरूरत नहीं आती है. डेथ सिंपल डेफिनेशन से IAS 3786 में लिखी हुई है. Fatality resulting from an accident is called death. Permit की single line definition officially allows someone to do something. It's called permit. Can anybody let me know how many types of permit they are working in their sites? How many types of work permit? Nishant. नहीं आदर्श, not me. Nishant. Nishant, are you there? Yes, sir. हाँ, please let me know how many types of work permit. Sir, you're not audible. I'm not audible. आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है? किसी और को? यस सर. निशांत, कितने प्रकार के वर्क परमिट होते हैं? ओके, कोई बात नहीं. हाँ, राम बहू, कैन यू लेट मी नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क परमिट? ओके, उज्जवल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क परमिट? कोई बताना चाहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, और क्या कोई वर्क परमिट का IAS कोड है? I think Adarsh wants to answer. आदर्श बताना. आदर्श, सर 7 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट सर. कहाँ पे लिखा है आदर्श? सर IAS कोड इसका देखा नहीं सर, बट ट्रेनिंग हमारे दोस्त है ना सारे, डॉक्टर साहब ने बताया था हमारे दोस्त सारे, उसमें कोई दोस्त होगा ना अपना बताने वाला. 7 जगह 7 परमिट है, करेक्ट? ये सर. हाँ, दैट इज कॉल्ड IAS कोड 17893. भुवनेश, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? प्लीज गो अहेड. Sir, it's 7 type of work permit, sir. Confined work permit, chemical work permit, evacuation work permit, hot and cold work permit, work from height, sir. Work Okay. from height permit. So, Bhuvnesh, I have asked the same question with the others also. Is it written somewhere in the IAS code or not? These are the work permits. So, the answer is the IAS code is 17893. Okay? Yeah. This is for all the participant. जो भी हम आंसर देते हैं in terms of environment, health, safety, fire, वो कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ है. हाइपोथेटिकल आंसर हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे EHS फील्ड में या ESG के फील्ड में कोई भी हाइपोथेटिकल आंसर नहीं है. सेफ्टी में बिल्कुल ही नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है कहीं ना कहीं. वर्क परमिट के लिए IAS कोड आ चुका है फरवरी 2023 में, शायद 23 में आया था ड्राफ्ट इसका, और BIS ने इसको पब्लिश किया, और IAS कोड 17893 है. तो यू कैन गो एंड रीड इट वंस अगेन. ओके, तो नियर बिस को कोई सिंगल लाइन में, जल्दी जल्दी चलना है, बहुत पीछे चल रहा हूं मैं, प्लीज. नियर बिस को कोई सिंगल लाइन में बताना चाहेगा? नियर बिस, एनी वन ऑफ यू? या सचिन? सर भुवनेश ही बताएगा सब कुछ. भुवनेश को छोड़ के कोई बताना चाहेगा कुछ? एनीबडी एक्सेप्ट भुवनेश एंड अरुण? दिव्या प्लीज. सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने IAS कोड मेंशन किए थे वो अकॉर्डिंग टू OSHA स्टैंडर्ड थे या एज पर
इंडियन स्टैंडर्ड। No personal injury was एक मिनट। हाँ, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन ये मुझसे? सचिन, IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड के होते हैं, ओशास के नहीं होते, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा है? Sir, actually, I am new to this topic, so I don't know much about this, sir. And may I know whom I am talking with? Divya. Okay, fine. Yes, sir. That's why I'm Okay, not it's okay. speaking. Okay, Divya. So please, समझ में आ रहा है आपको? पहली बात तो ये, अगर new So, and actually, sir, you told na you have to answer a specific line in a specific line. So I tried in 2 questions, but I guess it's okay. you That's a made very good habit. आप fully उसमें बोलना, explained topic. तो उसमें बोलना नहीं बंद Yes, करना sir. चाहिए That's ना। why. कोई इशू नहीं, No, आप sir. बोलो। If I'm knowing, I'm explaining. But if I'm Okay. not knowing that thing, so I'm just keeping Fine. myself quiet. ओके, थैंक यू। सो नियर मिस क्या होता है? बाल बाल बचना। इन हिंदी वी कॉल बाल बाल बचना एनी इट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज बट डज नॉट एक्चुअल रिजल्ट इन द हार्म। ये डिफिनेशन आपको मैं लाइन में लाइन पढ़ के बिल्कुल नहीं बता सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। MSDS क्या होता है? मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। इट इज एन होल बर्थ डिटेल ऑफ द केमिकल्स। वो लास्ट फर्स्ट टाइम कब बना और कब उसकी क्या उसकी कंबस्टिबिलिटी है, क्या उसकी फ्लेमेबिलिटी है, उसके पूरी की पूरी डेटा शीट होती है हर केमिकल प्रोडक्ट्स की। एंड इट इज एन लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल, लीगल रिक्वायरमेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। आप कभी भी कोई शब्द देखते हैं ऑनसेप या ऑफसेप, ऑनसेप इज ऑन साइट इमरजेंसी प्लान इफ एनी इमरजेंसी अकर्स ऑन साइट ओनली, सो इट इज कॉल्ड ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। विद इन द प्रीमाइसेस होता है तो ऑन साइट होता है, आउटसाइड द प्रीमाइसेस वो चीज चली जाती है तो उसको बोलते हैं ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान। ऑनसेप का अगर फुल फॉर्म आपको आता है तो ऑन साइड इमरजेंसी प्लान, और ऑफ सेप अगर कहीं पे आप वर्ड्स देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान। ओके, आप डिफिनेशंस जरूर पढ़िएगा, और ये ऑल द डिफिनेशंस आर बीन टेकन फ्रॉम एनी ऑफ द रेफरेंसेस। सब डिफिनेशंस रेफरेंस से ही ली गई हैं। ओके, अब जनरल इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा कि हजार्ड्स को एलिमिनेट करने के तरीके आपको बताए जाते हैं। व्हेन वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर, सो हम वर्क परमिट भरने जाते हैं और वर्क परमिट में सबसे पहले चीज क्या देखते हैं? पीपीईज। तो हमें लगता है कि पीपीई जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एलिमिनेशन ऑफ एनी सच टाइप ऑफ हजार्ड, करेक्ट? बट द प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट। हमें लगता है कि पीपीईज पहले चेक करेंगे वर्क परमिट पे, बट दिस प्रैक्टिस इज टोटली रॉन्ग। फर्स्ट होता है हमारा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एंड लास्ट इज द पीपीईज। जब हमें कुछ नहीं दिखता तो हम देखते हैं कि अब हमें पीपीईज इसको देनी है, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, टू गो इन एंड वर्क इन दैट हैजार्ड्स। सो हैजार्ड्स को हटाने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो हम फैक्ट्री में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वो होता है एलिमिनेशन। हम पूरे ही चीज को हटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पीपीज बिल्कुल नहीं, पीपीज पे फोकस नहीं करते। पीपीज हमारा लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। हम जो फर्स्ट चीज करते हैं वो एलिमिनेशन करते हैं। अगर इफ पॉसिबल है एलिमिनेशन में नहीं हो पा रहा तो हम सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन में नहीं हो पाता तो हम इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं। फिर नहीं हो पाता तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं। फिर नहीं हो पाता तो फिर हम आपका लीस्ट इफेक्टिव मेथड इज पीपीज। ओके, in case any of the accident or incident is going to be occurred, so we have to find the root cause analysis for the same. So जो root cause analysis होता है हमारा, वो there are various types of methods, but the best method is 5W methods to find any root cause analysis. So उसमें आपको 5 बार why पूछना होता है for direct to the employees जो वहां पर रहते हैं, जिनके सामने दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनके पास हमें ये चीज पूछना होता है। याद है सर, इसको जो आपने आरसीए बताया, इसको सर एक बार दोबारा से डिटेल में बता सकते हैं सर? 5Y और इसको डिटेल में। करेक्ट क्योंकि हाँ, बोलो। ये सर कंटिन्यू सर। ओके, तो मैंने ये बताया कि कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इवन फॉर द नियर मिस, अगर आपकी कंपनी जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, अगर आपको चाहते हैं कि वो दोबारा हमारे यहाँ पर नहीं हो,
तो इवन आई कैन सेइंग फॉर द नियर मिस ऑल्सो, हम नियर मिस में भी 5 मेथड यूज कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से एग्जाम्पल है एक्सीडेंट के. मान के चलिए कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं. आप यहां से जा रहे हैं और आपने देखा कि एक बंदा ब्लेड से काम कर रहा है किसी चीजों में, और दैट ब्लेड इज नॉट एन इंडस्ट्रियल प्रूफ ब्लेड. ठीक है. अब आपने देखा कि चलो ठीक है, कर रहा है, उसको चोट नहीं लग रही है, आपने प्रिकॉशंस लिया है, कट रेसिस्टेंस ग्लव्स दे दिया है उसको, प्रिकॉशंस लिया है. सो आदर्श, जो हमने ये कट रेसिस्टेंस ग्लव्स उसको दिया है, तो हमने कौन सा, मतलब उसमें हैजार्ड तो है ना. आप इसमें से क्या यूज किया हमने, ये वाली स्क्रीन से एलिमिनेशन यूज किया, सब्स्टिट्यूशन किया, क्या किया उस हैजार्ड को कम करने के लिए, बताओगे आप मुझे एक बार आदर्श? सर पीपीज यूज किया सर, उसको पीपीज दिया. पीपीज यूज किया ना. तो हम क्या, देखो छोटा सा एग्जांपल ले रहे था, हमने क्या, हम सबसे पहले कहाँ चले गए, लास्ट ऑप्शन पे चले गए सर. लास्ट ऑप्शन में. ठीक. अब मान लो कि उसको, हाँ बोलो आप बोलो. सर सबसे पहले हमें फिजिकली हैजार्ड को रिमूव करना चाहिए सर. करेक्ट. तो हम क्या कर सकते थे, अब मैंने आपको बताया कि शार्प नाइफ थी, हम कर क्या सकते थे, उस ब्लेड को हटा सकते थे सर. फिजिकली ब्लेड की जगह पे हम क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे. एलिमिनेशन के लिए वो मुझे पूरा ब्लेड ही करना पड़ता ना, एलिमिनेट करना पड़ता. यस सर. तो वो पॉसिबल नहीं था उस समय, एलिमिनेट नहीं कर पाए. हमें तो प्रोसेस कराना ही करना है. फिर हम क्या करते, सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, उसकी जगहों पे Yes, sir. कुछ और चीज कर सकते थे. करेक्ट. सब्स्टिट्यूट मेथड में आप क्या करते हो कि ब्लेड आपको कटिंग करनी ही करनी है, वो आप चेंज नहीं करोगे, बट ब्लेड को चेंज कर सकते थे आप. तो ब्लेड को कैसे चेंज किया हमने, सर ब्लेड की जगह पे उसको दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दे दिया कटिंग के लिए सर. नाइफ दे करेक्ट. दिया. और वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, चाकू हो सकता है सर. चाकू में भी नाइफ होता है दोस्त, और उसपे भी अगर हाथ कट सकता है हमारा. देखो आदर्श, दैट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी डिस्कशन बिटवीन यू एंड मी. तो देयर इज एन, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ जल्दी से. सेरेमिक ब्लेड्स आ गई है मार्केट में, पता है आपको? नो सर. हाँ, सेरेमिक ब्लेड एक ऐसी ब्लेड है जो आपकी चीजों को काटती है, बट आप जब उसको हाथ पे ऐसे टच करोगे ना, ऐसे करके, तो आपके हाथ पे वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगी. इट इज कॉस्टली, बट दैट इज द गुड प्रैक्टिसेस व्हाट आई एम फॉलोइंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने नॉर्मल ब्लेड्स को हटा के सेरेमिक के ब्लेड यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पे, जिससे क्या है कि हम पीपीएस पे नहीं गए. ठीक है, पीपीएस तक पे हम गए ही नहीं, हमने उसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की उसको. ठीक है. तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको हटा दिया और हम सेरेमिक ब्लेड पे गए. सेरेमिक ब्लेड से हमें रिजल्ट ये मिला, हमारे पीपीएस की कॉस्ट सेविंग में दिखा दिया हमने, और जितनी पीपीएस हमने कॉस्ट सेविंग में दिखाई, उसी से ब्लेड से हमने वो खरीद लिया. ठीक है. इन केस आप यही चीज अगर आपने अपनी हिरार्की कंट्रोल पे काम किया होता, सपोज कर लो किया होता, तो हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती. आरसीए आपने Yes, sir. नहीं किया, तो वहां तक सोचना, वहां तक घुसना, जो 5W मेथड्स है ना, ये सिंपल लोग क्या सोचते हैं ना कि 5 बार गए वहां बाय पूछोगे आंसर आ जाएगा. ऐसा नहीं है. ये नौबत नहीं आने देनी है, इसलिए हमने ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल को पहले रखा है. ठीक है. यस सर. ओके. एंड मेजर पॉइंट क्या है कि मैंने आपको ये स्लाइड भी दिखाई, इससे पहले हम क्या सोचते हैं, हम हर चीज में क्या सोचते हैं, कटिंग चीज है पीपीएस देख लो, आंख में दिक्कत आ रही है चश्मा देख लो. सो हम वो चीज पहले सोचते हैं. हम सारे जो जनरेशन थे, हम जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो हम भी यही सोचते थे. ठीक है. तो बहुत टाइम लगने के बाद हम लोग ने सीखा कि नहीं, पीपीएस बिल्कुल नहीं, उससे ज्यादा दिमाग लगा के हमें ये करना है, हम आरसीए पे नहीं पहुंचते जल्दी. ठीक है. और आपने जब ये चीज हायरार्की कंट्रोल में किया ना, तो आप आरसीए ही किए वहां पे बैठ के. ठीक है. सो इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी अकर्स इनसाइड द प्रीमाइसेस, तो आप क्या करते हैं, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एट योर होम, आप क्या करोगे? सर वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन. ओके. अगर आपके घर पे आग लग गई है, फायर हो गई है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे. करेक्ट. बुलाओगे ना आप? तो फायर के लिए पहले आप ये भी सोच सकते हो कि हम भाग जाएं. करेक्ट. हाँ सर, मतलब नियरेस्ट ऑप्शंस देखेंगे कि हमारे कंट्रोल में क्या है. करेक्ट. सो इन केस ऑफ एनी फायर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि भागते हैं यहाँ से, इंडस्ट्री में हो चाहे बाहर हो. ठीक है.
आपने कहा कि हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, दैट्स द राइट आंसर। हम लोग भी होते शायद यही करते, ठीक है। बट इफ यू आर ट्रेन्ड फॉर एनी ऑफ द इमरजेंसी, सो आप ट्राई करते कि इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, ओके। सो देयर इज अ मेथड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और इन केस ऑफ स्पेशली इन द फायर। आपको क्या करना है, दौड़ना है, रेस करना है। तो ऑल द लेटर्स हैव द सेपरेट मीनिंग। जैसे इफ आर मीन्स रेस्क्यू, आपको अगर फर्स्ट फायर फाइटर हो आप, तो आपको रेस्क्यू करना है अपने आप को। अलार्म बजाना है अगर आपके घर पे अलार्म है, और अलार्म आपके घर पे नहीं है, यू आर लिविंग इन अ बिल्डिंग और सोसाइटी, तो वहां पे अलार्म होते हैं। अगर आपके घर, आप अपने नॉर्मल घर पे हो तो वहां पे अलार्म नहीं है, तो आप मुंह से मतलब चिल्ला सकते हो, माउथ को अपने यूज करके, कि आग लगी है, भागो, वो कर सकते हो। जब भी आप वहां से बाहर निकले तो अपना डोर बंद कर दें, कंटेन कर दें उसको, और फिर बाद में उसको फायर ब्रिगेड को, जैसे आपने कहा, कॉल करेंगे तो वो आपकी बुझा लेंगे। इन केस आपको आता है तो आप वो चीज कर सकते हैं अपने आप भी, आगे स्लाइड में है, ठीक है। आप एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपके यहाँ पे आती होगी, करेक्ट, सबके यहाँ पे आती होगी। ऑल ऑफ यू आर हैविंग द एलपीजीज एट योर होम। सो एलपीजीज में आपको पता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अगर आप कहोगे एलपीजी की स्मेल, आपको एलपीजी की स्मेल आती है? आपके यहाँ पे लीकेज जब होता है, किसी को कभी किसी ने स्मेल सूंघी है एलपीजी की? यस सर। सूंघी है। तो वो जो स्मेल सूंघी है वो होता है इथाइल मरकैप्टेन, ओके। वो हम एलपीजी में डालते हैं कि इसमें स्मेल आए, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन से एलपीजी बनता है। उस प्रोपेन में भी कोई स्मेल नहीं है, ब्यूटेन में भी नहीं है, इसलिए उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिससे कि वी ऑल हैव टू गेट स्मेल इन एनी टाइप ऑफ लीकेजेस फ्रॉम द एयर, ओके। एंड एलपीजी इटसेल्फ, सिलेंडर इटसेल्फ हैज एन वैलिडिटी, जो यहां पर आपको नेक्स्ट राइट फोटोग्राफ्स में दिख भी रहा होगा कि एलपीजी का A25 लिखा है। इट मीन्स A denotes for the quarter of the that months and 25 denotes for year, ओके। ये आपको देखा है कहीं आप लोगों ने इसको ऐसे? सचिन, सतीजा, निशान, देखा है आप लोगों ने यस सर। कभी इसको? यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, फाइन, It's mentioned on every gas cylinder, sir. LPG gas cylinders. ओके। सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। Yes, sir. हैजार्ड्स में फिजिकल हैजार्ड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हैजार्ड, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन आपके ऑक्यूपेशंस के ऊपर डिपेंड होता है। फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, मैकेनिकल हैजार्ड एंड सोशियोलॉजिकल। तो फिजिकल हैजार्ड्स में से बात करते हैं, क्या होता है? हीट एंड कोल्ड, जो आपको फिजिकली महसूस होता है, देखते हो आप। लाइट हैजार्ड्स, नॉइस हैजार्ड, वाइब्रेशन हैजार्ड्स, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैजार्ड, आयनाइजिंग हैजार्ड्स। इसमें कोई इश्यूज, फिजिकल वर्ड से कोई इश्यूज किसी को फिजिकल हैजार्ड से? दे ऑल आर वेरी फैमिलियर with us. No Agreed? sir. No. Okay. No sir. I mean agreed. हाँ, मैं समझ गया, इसीलिए मैं आगे बढ़ गया, थैंक यू, ठीक है। केमिकल हैजार्ड्स में क्या होता है? केमिकल हैजार्ड्स के जो रूटीन होते हैं, रूट्स कह देंगे कि हम, जैसे इसमें 3 रूट्स होते हैं हमारे। एक होता है इंजेशन, इनहेलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इंजेशन मतलब तो पता है लोगों को, करेक्ट? कुछ चीज आप खाए, इंजेक्ट किए, इंजेक्शन किए अपने आप से। इनहेलेशन मतलब आपने कुछ इनहेल किया ब्रीथिंग से किसी भी केमिकल्स को। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब स्किन किसी के को, थ्रू अब्सॉर्ब्ड, स्किन के थ्रू Yes. अब्सॉर्ब्ड होता है सर। हाँ, स्किन कांटेक्ट के थ्रू आ जाएं, जो आपके स्किन के बॉडी के पार्ट बहुत छोटे छोटे, मतलब माइन्यूट आपके कह सकते हो, बॉडी के जहां से आपके हेयर्स ग्रोथ होते हैं वहां पर छिद्र होती हैं, छेद होते हैं, तो उसके थ्रू कोई अंदर चीज घुस जाए, ठीक है। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स सबको पता है। मैकेनिकल हैजार्ड सबको पता है, मशीन्स के पास मिल जाएंगे। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स सबको पता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई फटीक आ गया एक तरीके से, वो भी आ सकता है इसमें। साइकोलॉजिकल अवार्ड को 2 पार्टों में तोड़ा गया, साइकोमेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल। तो आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ गया, पेन हो रहा है, बैठने के तरीके से नहीं हो पा रहा है, एरिया वाइज में खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो दीज आर टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स विच वी आर फोकसिंग इन ईच ऑफ द फैक्ट्रीज। इनसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो आपको ट्रायंगल दिखाया था मैंने इससे पहले, उससे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको आप लोगों ने देखा है पिरामिड को इससे पहले कभी?
एनीवन ऑफ यू? मेरे को चैट It's unnecessary. हाँ, कौन बोल रहा है? आदर्श। आदर्श, कैन यू एक्सप्लेन दिस थोड़ा सा? Sir, LT means lost time injury, MT means medical treatment. हाँ, FAC मीन्स फर्स्ट एड केसेस। Yes, sir. एंड इसका मतलब क्या होता है आदर्श? इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे? फैटल मतलब सर प्लांट में अगर कोई फैटल एक्सीडेंट हो गया सर। ओके, तो जो नंबर लिखा है आदर्श, जो नंबर पिरामिड में दिख रहा है आपको और बगल में जो आपको दिख रहे हैं सारे शब्दों को, उसको एक्सप्लेन करना चाहोगे? ये अगर सर आप इतना डीपली नहीं है सर। ओके ओके, कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर दिस सच अ वंडरफुल आंसर कि आपने ये बताया कि FAC, MTC, LTA बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका। इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये बताया जाता है हमको कि देयर आर टू टाइप ऑफ अप्रोच, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है? जो आपको एक संकेत देता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। नियर मिस के बारे में क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच। मतलब उससे पहले हमको समझ जाना है नियर मिस में क्या होता है। नियर मिस की डिफिनेशन बताई थी मैंने आपको सिंगल लाइन में, बाल बचना हिंदी में। ठीक है, तो बाल बच गए, आपको हादसा नहीं हुआ, आपका फर्स्ट एड केस नहीं आया, इसीलिए इट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस कारण से वो नियर मिस हुआ था उसको अगर हम एक्सीडेंट में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी अगर हम उसको रूट कॉज निकाल के उसको प्रिवेंट कर लें। ठीक है, तो इस पिरामिड में हम ये देखते हैं कि जो 30,000 नियर मिसेस हम जो देखते हैं और अगर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं तो हमारे वो 30,000 कन्वर्ट हो जाते हैं 3,000 फर्स्ट एड केसेस में। और अगर हम फर्स्ट एड केसेस को भी सीरियसली नहीं लेते हैं इंडस्ट्रीज में तो वो 300 कन्वर्ट हो जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस में। ओके, 3,000 को फिर वो कन्वर्ट होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। अगर हम मेडिकल में भी नहीं कोशिश करते हैं रूट कॉज निकालने की और हम सही रूट कॉज नहीं निकालेंगे तो वो लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट में आ जाएंगे 30 हमारे। और अगर हमने ये चारों चीज नियर मिसेस, फर्स्ट एड केसेस, MTC, LTA, इन सब में रूट कॉज सही फाइंड नहीं किया है तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में एक डेथ केस रिपोर्ट हो जाएगा एंड दैट इज वेरी सीरियस। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ रेशियो 30,000, 3,000, 300, 30 एंड देन 1। तो इसलिए हमको नियर मिस को बहुत ही सीरियसनेस लेनी चाहिए और उस पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। तो इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी आर टोटली फोकसेस ऑफ नियर मिसेस। हमारी पर मंथ में नियर मिसेस 40 to 45 आती है एंड इट्स कंपल्सरी एंड ऑल हैव टू गिव इट। ओके, सो दीज आर द चेक शीट जिससे हम मॉनिटरिंग करते हैं। सेफ्टी मॉनिटरिंग चेक शीट जिसमें हाइडेंस सिस्टम आता है, स्नो डिटेक्शन। ये चेक शीट है जिसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कि व्हाट वी आर मॉनिटरिंग डेली एंड व्हाट वी आर नीडेड टू मॉनिटरिंग मंथली बेसिस। जिसमें आपका बैटरी चार्जिंग लोकेशंस मंथली पे भी कर सकते हो आप। दैट इज डिपेंड अपॉन यू एंड योर टीम मेंबर्स। प्रॉपर स्टैकिंग होना चाहिए। पेट्रोलियम स्टोरेज मंथली करते हैं हम। ठीक है, तो चेक शीट है। और इसका बेनिफिट्स क्या होता है? इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको बहुत ट्रेनिंग्स में भी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर सकते हो। बेनिफिट्स स्पेशली फॉर, अगर चेकशीट के बेनिफिट्स की बात हम करते हैं तो चेकशीट के बेनिफिट्स में ये होता है कि आप डेली उस चीज को चेक कर सकते हैं। डेली वाले में, मंथली वाले में कुछ चेक कर सकते हैं जिससे अगर कुछ इंसिडेंट होने के चांसेस हैं, कुछ फेलियर होने के चांसेस है मैकेनिकल डिवाइसेस, तो वो आपको आराम से पता चल जाए। ओके, सेफ्टी ट्रेनिंग्स आप करा सकते हैं जो हम लोग कराते हैं अपने यहाँ पे, जनरल सेफ्टी, फायर फाइटिंग, वर्क परमिट सिस्टम। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपके जो डेली रूटीन्स के काम होते हैं उसमें आप कुछ ना कुछ अपना रिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, PPEs क्या होती है? PPEs, there are various type of PPEs. Many of them explain in front of you. Respiratory, non-respiratory. Respiratory में full face mask, half face mask, disposable. Non-respiratory में helmets, goggles, earplug, gloves. So this all is to prevent from the hazards, but this is a last line of control. Okay. Type of incident, first aid, non-reportable, reportable, dangerous occurrence. अगर कोई भी चीज फर्स्ट एड केसेस होता है और वो किसी को भी फर्स्ट एड होता है और वो तुरंत ही अपना फर्स्ट एड करा के जॉब पे आ जाता है विद इन आवर्स में, तो उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं कंपनीज में। नॉन रिपोर्टेबल मतलब क्या होता है? 48 आवर्स में कोई चीज होती है और वो अपना ड्यूटी रेज्यूम कर लेता है तो नॉन रिपोर्टेबल है।
48 आवर्स में अगर कोई बंदा को चोट लगी है या फिर कोई वर्कर को चोट लगी है, वो नहीं आ पाता है प्रीमाइसेस के अंदर जॉब पे, तो उसको हमको रिपोर्टेबल करना पड़ता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को बताना पड़ता है। डेंजरस अकरेंस क्या होता है कि आपके यहाँ पे कोई दुर्घटनाएं घटित हुई हो ऑन साइट और वो ऑफ साइट पे चली गई हो, दैट्स कॉल्ड डेंजरस अकरेंस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी वर्क परमिट सिस्टम होता है तो उसमें हम वर्क परमिट देने से पहले उस जॉब सेफ्टी एनालिसिस शीट बनाते हैं कि उसमें हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, वी हैव टू फाइंड द हजार्ड्स, और उस हजार्ड्स को कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्या रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद वर्क परमिट असाइन करते हैं। द पर्सन हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको वर्क परमिट तभी इश्यूज होता है जब वहां पे जॉब सेफ्टी एनालिसिस शीट हम बना के सबमिट करते हैं। ठीक है, हैजार्ड क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर हजार्ड्स को फाइंड करना, और हजार्ड का फुल फॉर्म क्या है, हजार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडीज। सो इसको फाइंड करना हजार्ड को, इसमें गाइड वर्ड्स होते हैं, दीज आर द स्प्लिट टॉपिक्स विच टेक्स मोर देन 5 to 6 hours टू अंडरस्टैंड हैजार्ड। ठीक है, बट आपको यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते रहिए हैजार्ड स्टडी करके एक शब्द है जिसमें हम क्या करते हैं, गाइड वर्ड्स यूज करते हैं, उस गाइड वर्ड्स के थ्रू हम हैजार्ड्स फाइंड करते हैं कंपनीज के अंदर। ओके, पेट्रोलियम, हम आपके सब लोग के यहाँ पे वी आर स्टोरिंग द पेट्रोलियम एक्ट के तहत में देयर आर 3 क्लासेस ऑफ पेट्रोलियम, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, एंड दैट क्लासेस इज विल डिपेंड अपॉन देयर फ्लैश पॉइंट्स। अगर फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस से कम है तो पेट्रोलियम क्लास ए होता है, 23 से 65 के बीच में आता है तो क्लास बी, एंड अबव 65 क्या होता है या लेस देन 93 होता है तो पेट्रोलियम क्लास सी होता है। एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एक्ट के तहत में हम, एक तो हो गया फ्लैश पॉइंट से डिफाइन करना, एक होता है लीटर्स से, तो जिसके लिए आपको लाइसेंसेस लेना होता है। तो पेट्रोलियम क्लास ए क्या होता है कि अगर 30 लीटर से ज्यादा नहीं होता, डज नॉट एक्सीड 30 लीटर, तो पेट्रोलियम क्लास ए है। हाँ सचिन, कुछ पूछने जाते हैं आप? सर फ्लैश पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताइए ना सर। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पर वो कोई भी केमिकल होता है या कोई भी पेट्रोल होता है जहां पर वो ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेता है। ठीक है, उसका फ्लैश पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, उस पर डिपेंड कराया गया है, इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, ओके सर। एलईएल और यूएल क्या होता है? लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। ठीक है, देखो नीचे ग्राफ में जो बनाया, नीचे जो टेबल बनी है ना, एलईएल और यूएल लेवल लिखा हुआ है 1.2 8.0। टीएलबी का मतलब होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। ठीक है, ओके हाँ सर, हीरा एंड हैजॉप में कोई मेजर डिफरेंस है क्या सर? हाँ, हीरा एंड हैजॉप में आपको सबसे बड़ी चीज याद रखनी है कि हैजॉप में हम जब भी करते हैं कोई टेक्निक को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक गाइड वर्ड्स हैं, आप देखोगे ना गाइड वर्ड्स लिखे हैं, नो, मोर देन, लेस ऑफ, एज वेल एज, पार्ट ऑफ, रिवर्स, अदर देन, दीज आर द गाइड वर्ड्स। हर ये जैसे कि मान के चलो फायर हाइड्रेंट की लाइन है, पेट्रोलियम की लाइन स्टोर है, वहां पे नल लगा होगा, नल मतलब नोजल्स लगे होंगे, ठीक है, वॉल्व्स लगे होंगे, वहां पर ये चीज गाइड वर्ड्स हम लगाते हैं एक एक वॉल पे। अब हीरा में क्या है कि आपको जॉब करने जा रहे हो, उसमें क्या सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट, वहां फाइंड करते हैं, सीवियरिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वहां पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सीवियरिटी हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, बट यहां पर कोई अजम्पशन नहीं है। ठीक है, हैजॉप स्टडी इटसेल्फ टेकिंग 1 month टाइम फॉर ईच ऑफ द इक्विपमेंट्स, अगर अच्छे से करोगे। और हीरा को आप एक दिन में बहुत चीजें करके हम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी पे डिपेंड होता है। ओके, थैंक यू, वेलकम। अब क्लास ए में क्या आता है? जो ऐसे पेट्रोलियम जो कि जिसकी क्वांटिटी डज नॉट एक्सीड 30 लीटर। क्लास बी में 2500 लीटर बट 1000 लीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। क्लास सी में इफ द टोटल क्वांटिटी इन पोजीशन एट एनी वन प्लेस डज नॉट एक्सीड 45,000 लीटर, दैट इन क्लास सी। अब इसमें क्या होता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में इसमें आपको लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। अगर आप इससे नीचे स्टोर करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, इससे ऊपर आप रखते हैं क्वांटिटी से तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है फ्रॉम द पीजो डिपार्टमेंट। ओके, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में अभी जाएंगे। ठीक है, एमएसडीएस के लिए 16 पॉइंट्स होती हैं। एमएसडीएस आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दैट इज एन बर्थ डिटेल ऑफ केमिकल्स, या जन्म कुंडली बोलते हैं हिंदी में। आप इंटरव्यू में ये सारे शब्द यूज कर सकते हो।
जब आपसे कोई पूछे MSDS क्या है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, इन हिंदी इट इज कॉल्ड जन्म मतलब वो डिटेल जन्म कुंडली इंस्टेड ऑफ दिस, ओके। और MSDS में सब कुछ आता है, सब कुछ लिख के मिलेगा जो आपको बताया गया अभी पीछे, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, लोअर एक्सक्लूसिव लिमिट, अपर एक्सक्लूसिव लिमिट, फ्लैश पॉइंट, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। इस तरह के लेबल्स आपको दिखाई देंगे ट्रक्स के पीछे जब ट्रक्स केमिकल लेके जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन कलर कोड एज पर द IS 2379। इसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पे एक ही साथ में बहुत सारी लाइन सप्लाईज की लाइन जाती है, वाटर्स की लाइन जाती है, कूलिंग वाटर जाता है, ड्रिंकिंग वाटर जाता है, RO वाटर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई गलती से कोई और पाइपलाइन ना टच कर ले, ना खोल ले, सो वी वर्क इन दिस टाइप ऑफ कोड्स। तो IS 2379 हमारी हेल्प करता है, दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड्स। और हम क्या करते हैं, उस लाइंस को कलरिंग कराते हैं और कलर मैट्रिक्स वहां लगा के रखते हैं कि ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है, ठीक है। आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। कंट्रोल मेजर ये आपको डॉक्टर प्रियांक सर ने बताया है, ठीक है। मैन मटेरियल मशीन के बारे में आप लोग को पता है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। स्टैटिक चार्ज आपको पता है, स्टैटिक चार्ज किसी को, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से वर्ड से कोई भी अपना वो पता है किसी को? आदर्श, अनुश्री, अरुण, भुवनेश, किसी को पता है स्टैटिक चार्ज? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक चार्ज? किसी को नहीं पता? Sir, it is a charge due to friction. Due to friction of any? Negative and positive charges, sir. Agreed, but Friction between the negative and negative and positive. Okay. Sir, it is remaining charge. हाँ, भुवनेश बताइए। Sir, it is remaining charge. It is a remaining charge, and that charge is produced by friction of any of the liquid, any of the materials. Is it correct or not? Okay. What is static electricity? Static electricity is a phenomena of electrification of material through physical contact and separations. ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बताया मुझे आदर्श ने, नेगेटिव चार्ज बताया इसमें, ठीक है। दोनों चीज इसमें है। दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बची हुई बिजली, बची हुई चार्ज दैट इज जनरेटेड बाय एनी ऑफ द फ्रिक्शंस, ओके, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। इसको हम कैसे हटाते हैं स्टैटिक चार्ज को? ये देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि दैट इज इट माइट बी कंटेनिंग द फ्रिक्शन। जैसे आप लिक्विड यहां से निकाल रहे हैं तो फ्रिक्शन हुआ होगा, तो इसके जो कैप है, इसके जो ऊपर के एरिया है, उसमें हमने क्या किया है, को बताना चाहेगा इसको? ग्राउंड वायरिंग लगा दी है, जिससे अर्थिंग कर सकते हैं, हम ग्राउंड कर सकते हैं, जो चार्ज डिसिपिएट कर सकते हैं ग्राउंड में। इसलिए हमने क्या किया, एक GI की प्लेट ले सकते हो आप लोग, अगर करना चाहें तो GI की प्लेट लेके उसको ग्राउंडेड कर दीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको स्टैटिक चार्ज से करंट नहीं लगेगी और आपका चार्ज डिसिपिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। फ्लेम प्रूफ कैबिनेट हम क्यों यूज करते हैं? फ्लेम प्रूफ कैबिनेट हम इसलिए यूज करते हैं कि इन केस ऑफ EN स्टैंडर्ड्स को पता है सबको ना, यूरोपियन नॉर्म्स बोलते हैं। फ्लेम प्रूफ कैबिनेट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इन केस ऑफ एनी केमिकल्स वी हैव टू स्टोर दैट केमिकल इन द फ्लेम प्रूफ, क्योंकि अगर कभी भी फायर होगी तो उस फायर से बहुत सी चीजें हमारी डैमेज होगी एरिया वाइज एनवायरमेंट की, तो हम फ्लेम प्रूफ कैबिनेट यूज करते हैं अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। कैन एनीबडी लेट मी नो व्हाट इज फायर? कोई बताना चाहेगा फायर क्या होता है? मनीराज प्लीज सर बोलेंगे। आदर्श एक मिनट हो जाए, एक मिनट आदर्श, मनी को बोलने दीजिए पहले। मनीराज प्लीज। दीपक सिंह, दीपक बताएंगे प्लीज एक बार? वो कल तक आ जाएगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस। यस सर। आज करेक्ट है, तो फाइल थोड़ी मोटी हुई है, तो
Sorry for this. Hello. Yes, sir. हाँ जी, कोई बताएगा फायर क्या होता है? Yes, sir. It is हाँ, a chemical chain reaction, heat, fuel and oxygen, that's called fire. तीन ओके चीजों को मिला के फायर बनता है, आपका हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन. ओके, थैंक यू आदर्श. भूमनेश कुछ बोलना चाहते हैं? कैन यू वांट टू स्पीक समथिंग? Sir, it is a combination of carbon, fuel, oxygen, sir. ओके, ठीक है. तो वी आर स्क्रीन आपको दिख रही होगी. हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीजों का मिश्रण होकर केमिकल रिएक्शंस होता है. दिस इज टोटली प्रेजेंट ऑन द चेन रिएक्शंस, और इसका जो रिजल्टेंट आता है, आप समझे, प्रोडक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड फायर. ठीक. अगर हमें फायर को हटाना है या बुझाना है, तो हम इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को हटा लेंगे. सिंपल है. आप ऑक्सीजन को हटा सकते हैं, हीट को हटा सकते हैं, फ्यूल को हटा सकते हैं. ठीक है. किसी भी चीज को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे? फायर को हटा सकते हैं. करेक्ट? ठीक है. सब लोग इधर कैमरा खोलेंगे अपना एक बार. कैन ऑल ऑफ यू थोड़ा जल्दी. कैन ऑल ऑफ यू कैन ओपन योर कैमरा. सचिन, उज्जवल, आदर्श. यस प्लीज. सो फायर को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड दिखाने वाला हूं. ठीक है. हमने बताया कि हमारे पास वो तीन चीजें होती हैं, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन. तो एग्जाम्पल ये है, और जिसको पूछूंगा सिर्फ वही बताना. ठीक है. सब लोग नहीं बोलना, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग सीख भी सकते हैं. ठीक है. हाँ सर एक्चुअली नेटवर्क इश्यू था, मैं कैमरा ओके ठीक है आदर्श. ओके फाइन. ठीक है. जितने लोग ने खोला उनके लिए ठीक है. जो नहीं खोल पा रहे हैं इट्स ओके ऑफिस में. तो अगर ये मेरे हाथ में फ्यूल है, लेट्स सपोज दिस इज अ पेट्रोल. फ्यूल का ढक्कन बंद है. ठीक है. फ्यूल हम रखे हैं, फ्यूल का ढक्कन बंद है. ठीक है. ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में है. मैंने यहाँ पे लाइटर को जला दिया है. ठीक है. लाइटर जला के रखा हुआ हूं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन. मैंने लाइटर जलाया हुआ है. ठीक है. फ्यूल हमारे पास है, लेकिन फ्यूल बंद है, ऑक्सीजन एयर में है. तो क्या आग लगेगी? फायर लगेगा? सचिन आप बताओ इसको. फायर लगेगा? Sir, can you repeat the question, sir? हाँ. I have a fuel in this is an bottle having the fuel like petrol, and इसकी कैप बंद है. ओके. फ्यूल है, ऑक्सीजन एनवायरमेंट में है, और माचिस मैंने जला दी है. तो क्या आग लग सकती है? आग लगेगी फ्यूल से? No, sir. वाई? I think because of उसका जो इट्स ओके. कोई आंसर मत दो, अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो. चलो जल्दी से. और कितने लोग कह रहे हैं लगेगी? हाथ उठा दो. कितने लोग कह रहे हैं लगेगी, आग लग जाएगी? सर मेन उसका जो फ्यूल का सोर्स है ना सर, वो बंद है, इसलिए आई थिंक नहीं लग सकती सर. ठीक है. दिव्या क्या बोल रही हो? नहीं लगेगी आग? नहीं लगेगी सर. गुड. निशान? नो सर, ओके. फ्यूल सोर्स बंद है. ठीक है. अब मैंने क्या किया, फ्यूल सोर्स को खोल दिया है.
ठीक, यस फ्यूल सोर्स खुल गया, माचिस अभी भी जल रहा है, फ्यूल को सोर्स खुला है, मैंने माचिस को उठा के इसके अंदर डाल दिया, लाइटर को इसके अंदर डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब आग लगेगी? नो सर, ये आग नतीजा। लगी होगी स्टार्टिंग में, फिर बंद हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन सोर्स खत्म हो गया। गुड निशान, सबका आंसर यही है? किसी को कोई क्वेरी है इसमें? यस सर। सबका आंसर यही है नहीं ना? सर। ओके, सो बेसिक पॉइंट क्या है कि हमें यह पता होना चाहिए कि फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इफ वी आर हैविंग और रिमूविंग समथिंग फ्रॉम देम, हम तीनों में से किसी भी चीज को हटाते हैं तो आग अपने आप बंद हो जाती है, नहीं जलती। सपोज कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल? चलो ठीक है, आपको ये बोर्ड दिख रहा है? यस सर। दूर है कि दिख रहा है आप लोग को? इतना क्लियर नहीं दिख रहा क्लियर नहीं दिख रहा है, करेक्ट। अब मान लीजिए हम पेट्रोल टंकी पे जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए कार में अपने, ठीक। अब जब हम पेट्रोल टंकी पे कार भराने जाते हैं, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताना आंसर। पेट्रोल टंकी में कार में हम पेट्रोल भराने जा रहे हैं, ढक्कन खुला, आप बाइक भी एज्यूम कर सकते हो, टंकी में बाइक या स्कूटी यूज कर सकते हो, ढक्कन खुला, हमने पेट्रोल डाला, ठीक, और उस समय फायर हो गई, ठीक है। आप जैसे समझदार लोग वहां पे थे जिन्होंने पेट्रोल टंकी से पाइप हटा ली और पेट्रोल टंकी का जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले होता है, उसको बंद कर दिया आपने। लेकिन आपकी गाड़ी के कैबिनेट में जहां पर पेट्रोल भरते हैं वहां पर आग लगी हुई है। सो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस ट्रेनिंग के बाद, कि हमें पता है कि उस तीनों सोर्सेस में से कुछ एक हटाएंगे तो आग बुझ जाएगी। सो सचिन बताओगे? सर आई थिंक वहां पे हम सचिन, हाँ रुक जाओ, तुम बता लोगे। दीपक म्यूट हो दोस्त आप म्यूट हैं, यू आर म्यूट, ऑन म्यूट प्लीज। जल्दी करना, टाइम बिल्कुल कम है दोस्त, तुम्हारे पास भी हमारे पास भी, प्लीज। सर कैब बंद कर देंगे कार का सर। उससे क्या किया हमने दोस्त? कार का ढक्कन बंद करके क्या किया? ऑक्सीजन सर क्लोज कर दिया वहां से। ठीक है, सब लोग क्लियर हो? यस सर। दिव्या को सोच रही है बहुत देर से, कुछ और बोलना चाह रही है क्या दिव्या? नहीं सर, आई एम ओके। ओके फाइन, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ये देखो कि जो पेट्रोल टंकी पे लोग पेट्रोल भरते हैं वो क्या करते हैं, सिलेंडर उठाया और तुरंत एक्सटिंग्विश कर दिया, करेक्ट? यस यस। वैसा हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें पता है कि ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं साइड शेयर कर देता हूँ बच्ची थोड़ी सी। ठीक है, सो ये हो गया। देर आर 4 टाइप्स ऑफ फायर, इलेक्ट्रिकल, सॉरी, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप। सब एग्री हैं? ए टाइप सॉलिड फायर, आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 6 और 7 में, सॉलिड लिक्विड गैस। तो लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? ए टाइप मीन सॉलिड, बी मीन्स लिक्विड, सी मीन गैस, करेक्ट? यस सर। ओके, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। भाई बोलते रहो, अच्छा लगता है मुझे भी, मुझे लग रही है, मुझे ये बिल्कुल लेना चाहिए कि मैं न्यूज दे रहा हूँ। सर मेरा हाँ। डाउट है इसमें। यस सर। हाँ बताइए सचिन। इन जनरल जो मैंने गूगल पे वगैरह देखा है सर, ए बी सी डी ई और के, यस, हाँ ये ज्यादातर ये देखने को मिलता है सर। हाँ, ए में जैसे कि सॉलिड हो गया, बी में लिक्विड हो गया, सी में गैस हो गया, ई में इलेक्ट्रिकल हो गया, डी में मेटेलिक हो गया, हाँ। और जैसे कि के फायर भी है, उसमें किचन फायर भी, किचन फायर हो गई, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा अपना इरा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनते हैं। जो आपने बोला इलेक्ट्रिकल फायर करके कोई फायर होती है? बिजली को आपने कभी देखा है? नो सर। नहीं देखा, करेक्ट। बिजली को हम कहां से देखते हैं? जैसे मेरे ऊपर लाइट जल रही है, ये बिजली है, बट वो बिजली है क्या? सॉलिड है। बल्ब क्या हो गया? सॉलिड पार्ट है, या तो मेटल होगा उसके अंदर, बल्ब में मेटल आता है, या मेरा फोन है ये सॉलिड है। अगर मैं सॉलिड मतलब क्या, मैं यहां पर कुछ कर रहा हूं अपने सामने तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा पीछे मैंने क्या चीज किया, ठीक है, सॉलिड है।
तो बिजली में सिर्फ एक चीज याद रखना है हमको कि कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर होती है तो हमको एमसीबी गिरा देना है और फिर ये देखना है कि वो सॉलिड में आता है, लिक्विड में आता है, गैस में आता है या मेटल में आता है, करेक्ट, उसी के अंदर बिजली होगी। तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फायर में ये यूज करते हैं, ये थोड़ा सा करते हैं कि आप एमसीबी गिराइए और यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश दैट फायर। और रही बात किचन की, के टाइप की, तो किचन में आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो दीपक? एडिबल ऑयल्स वगैरह सर। एडिबल ऑयल्स। अब ये बताओ कि ए बी सी, बी में हमने लिखा है कि लिक्विड फायर, तो एडिबल ऑयल्स इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। यस सर। तो वी कैन यूज इट। तो आपको अपना आंसर मिल गया दोस्त। यस सर, यस यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो आग बुझाने के लिए हमने आपको बताया कि 3 चीजों में से एक एक करके हटाओगे तो आग बुझ जाएगी। अगर आपने ऑक्सीजन हटाया तो उसको बोलते हैं स्मूदरिंग मेथड। अगर आपने कोई फ्यूल को हटाया उसको बोलते हैं स्टारवेशन मेथड। अगर आपने किसी चीज को, गर्म चीज को ठंडा किया तो उसको बोलते हैं कूलिंग मेथड। तो ऑक्सीजन हटाया तो स्मूदरिंग, फ्यूल हटाया तो स्टारवेशन, और किसी चीज को हीट को ठंडा किया तो कूलिंग मेथड। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनी आर डूइंग थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड कूलिंग मेथड। इसीलिए देखो आप हर जगह पे लाल कलर की पाइप दिखती है आपको। एग्रीड? ठीक है। एक्सटिंग्विशर्स हैं आपके पास, पीपीटी जाएगी, आप एक्सटिंग्विशर देख सकते हैं अपने आप से। ठीक है। देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड पास, जो एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हम यूज करते हैं। पुल द पिन, एम द बेस, स्क्वीज एंड स्वीप। दिस इज अ मेथड दैट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पास। ठीक है, आप लोग ने भी इसके पहले सुना होगा इसको। ओके, यस सर। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये पहले आपसे पूछा था मैंने, रेस्क्यू करते हैं, ये ऊपर स्लाइड थी। ठीक है। गुड प्रैक्टिसेस एट यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड। ये देखिए हमने मैन पावर मैनेजमेंट सिस्टम में क्या किया है, जेंडर स्पेसिफिक लाइन है हमारे यहाँ पे। आपने देखा होगा बैरिकेशन लगा है, इसके बगल में लड़के चलते हैं और इधर से लड़कियां चलती हैं, और येलो पट्टी चलती है क्योंकि मैन और हैवी मोटर व्हीकल साथ में कभी भी चलते हैं, तो उसके लिए हमने किया है इसको। फुटवेयर मैंडेट किया है हमने। सबसे पहले अगर हजार्डस कंपनी है, काफी हैवी मेटल्स, आप हैवी मशीन्स रखे हैं तो आप सेफ्टी शूज भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर हैवी मशीन्स नहीं है तो आप नॉर्मल शूज तो करिए अपने हाथ पे। ठीक है। पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट्स हम नहीं यूज कराते, हम वो भी रोकते हैं, कंप्लायंस भी कर रहे हैं हम। ठीक है। सेकेंड चीज, इलेक्ट्रिकल हजार्ड से प्रिकॉशंस के लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए कि हमने जो भी हमारी काफी बड़े एमसीबीज और पैनल्स हैं उनको हम लॉक एंड की में रखे हैं, और इवन हमने उसके ऊपर शेड डाला हुआ है, क्योंकि अगर वो ओपन एरिया में है तो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है। और पीजोमीटर्स के में भी आप देख सकते हो कि पीजोमीटर इज अ डिवाइस, प्रियांक सर ने आपको बताया होगा पीजोमीटर्स के बारे में भी। तो पीजोमीटर्स भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम उसको, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हम उसको भी शेड्स में रखते हैं कि पीजोमीटर के सेंसर्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। फर्स्ट चीज, पीजोमीटर्स की वायरिंग पे किसी की थ्रू के स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाए, इसलिए उसको साइड में रखते हैं हम लोग। सो वी आर यूजिंग दिस प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे मोस्ट और मेजर इंपॉर्टेंस चीज क्या है कि आप ये देखिए पिक्चर ये वाली, कि हमारे ये स्क्रैप एरिया है। स्क्रैप एरियाज में क्या होता है, ऑलवेज स्क्रैप आ जाते हैं सामने, हमेशा हाइडेंट पॉइंट के सामने, एक्सटिंग्विशर के सामने स्क्रैप्स पड़े होते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक बैरिकेड बना दिया है अलग से, कि इसके अंदर कभी भी कोई भी मैकेनिकल चाहे गलती से भी कोई सामान नहीं रखता, तो हमारा जो एक्सेस है, इन केस ऑफ एनी टाइम, एक्सेस हमारा हमेशा क्लियर रहता है, हम आराम से पहुंच सकते हैं। अदरवाइज किसी भी कंपनी से आप देखोगे कि स्क्रैप एरिया में क्या होता है कि सारे मटेरियल रहते हैं, आपके पास एक्सेस ही नहीं होता इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज ऑफ फायर। ओके, तो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जांपल्स जो हम लोग करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है कि आप लोगों ने पेशेंस से सुना मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली ओपन है, आप पूछ सकते हैं। आप लोग के पास प्रिपेयर करके 3-4 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से पूछ लीजिए। सर मुझे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में जानना था सर, हाउ इट्स वर्क। ओके, तो ये भाई बहुत बड़ा टॉपिक है जो तुमने पूछा मुझसे, फायर स्प्रिंकलर, बट कोई इश्यूज नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रियांक सर से, उनकी टीम से, कि एक क्लास स्पेशल फायर स्प्रिंकलर की रखी जाए, तो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट राइट नाउ इट्स अ वेरी ह्यूज बिग टॉपिक फॉर द फायर स्प्रिंकलर, क्योंकि आपके मैं बताना स्टार्ट करूंगा, आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट करेंगे, और हमारे पीछे बैक टू बैक बहुत लोग लगे हैं दोस्त,
तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो जरूर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रियांक सर से, खेवना से, कि वो let me summarize it in a very short way for fire Yes. sprinkler. Fire sprinkler is a mode of extinguishing any of the fire with the help of the water. It's a cooling process to extinguish the system. It has been designed based on the fire load calculation. How much organic matter is there. Basis on that, we do some calculation and come out with some designing of laying the lines over there. Then you have seen one exit point of fire sprinkler. There is a one plunger is there. Plunger means there is a two different parts and having some mechanical and spring in between. So it's a plunger. We call as a plunger. And in between two part of that plungers, there is a one glass bulb is there, and that glass bulb basically hold both of the plungers. And if that bulb can be removed by any of means, those plungers comes down and water is sprinkled with some pressure which is already there in the pipeline. So that bulb basically having a chemical or a material, or generally it is having a alcohol or a mixture of some chemicals with alcohol, which start evaporating at the certain temperature. Generally, that bulb is made out with different chemicals and petroleum products on a certain design of the pressure. So if it generally it designed for the 68 degree of the temperature, but sometimes we design it more temperatures as well. So based on the temperature, it's having a different color code. But in general practices, we use a 68 degree of the temperature with having a red color of the bulb. And when the room temperature or that area temperature reaches up to the 68 degree, it start evaporating and burst. Once it's burst, then both of the plunger comes together and there is a pressure over there. So this is just a mechanism of the water sprinkling system. More, if you want to get more information, more knowledge, then we have to go for its designing, its process, how it works, lot of things, and you can even search on the Google as well. So immediately I can explain this much only. Yeah, Anurag and team. Yeah, please thank you very much sir for this. So सचिन, आपका आंसर सर ने दे दिया. So थैंक यू. ठीक है. और ये स्प्रिंकलर को एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ. स्प्रिंकलर हम वहां पे लगाते हैं जहां पर हमारे पास वेयर हाउसेस होते हैं, उसकी कुछ लोकेशन डिफाइन होती है. ठीक है, वहां पे लगाते हैं जहां पर हम इजिली अंदर ना जा पाए. ठीक है, वहां के लिए लगा के यूज करते हैं और कोई इश्यूज नहीं है. सर ने आपको आंसर दिया है. आप basically sprinklers to be put there where there is a unmanned area, जहाँ पे कोई आदमी नहीं होता है, where there is a no person to extinguish, or where there is a lot of flammable material is there and you can't extinguish your fire immediately. So it helps in that way. Yeah, please. ओके सर, थैंक यू. सो देखो, आप लोग के बीच में ही निशांत शायद है कोई. ठीक है. सो उन्होंने क्या किया है कि अभी उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दी है. ठीक है, तो आप लोग इस चीजों को बहुत अच्छे से लीजिए, बहुत अच्छे से लोग इसको ले रहे हैं. सो बीइंग एन एक्सपर्ट, आप कांटेक्ट अपने बना के रखो सबसे. EHS सर्विसेज टीम जो हमारी टीम है, प्रियांक सर की टीम है, इससे आप कांटेक्ट में रहें. और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इनहेंस करना है नॉलेज और स्किल्स को, सो यू कैन राइट डाउन अ मेल टू प्रियांक सर. आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि और आपके लिए सेशन चलाएं जिससे आप लोग की सारी नॉलेज और स्किल्स क्लियर हो पाए. और आई रियली वांट टू थैंक टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ वेरी गुड मैनर, वेरी वेल मैनर. सो आप EHS सर्विसेज का भी लिंक्डइन पेज है, आप उनके थ्रू भी आप आ सकते हैं हमारे पास और हमसे बात कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं. ठीक है, थैंक यू सर. मुझे आपका आईडी नहीं मिल रहा है सर लिंक्डइन पे. आईडी नहीं मिल रहा है? निशांत को मिल गया, तुम लोग को नहीं मिल रहा है? सर आई हैव अ क्वेश्चन. अनुराग सर, आई हैव अ क्वेश्चन. सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि अभी ये म्यूचुअल क्वेश्चन है, ये प्रियांक सर से भी है
कि इतने दिन से हमारे जो भी वो है हमारे लेक्चर्स हुए हैं, तो उसपे एक चीज कॉमन है कि नॉलेज, ये नॉलेज इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से डेवलप होती है या हमें बिफोर हैंड जब हम इंडस्ट्री में एंटर कर रहे होते हैं उससे पहले हमें अपनी डेवलप करनी पड़ती है, या हमें ट्रेनिंग्स वगैरह वहां पे प्रॉपर होती है हमारी? क्योंकि हमें हमारे करिकुलम में जो भी हम पढ़ रहे हैं 2 दिन से, ये सब चीजें नहीं होती हैं. जैसे मैं करंटली आई एम परस्यूइंग माय मास्टर्स इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. पर वहां पे हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा, पर इन डेप्थ हमें नहीं पढ़ाया जाता, इवन कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता, कोई भी करिकुलम में नहीं होता है. तो मुझे ये जानना है कि ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से आता है या हमें साइड बाय साइड अपनी नॉलेज को किसी तरीके से डेवलप करते रहना चाहिए? Let me answer. हाँ सर, यस Yes, sir. Nishant, hope I am audible because I am traveling, so यस सर, Yes, sir, you are audible. maybe some signal disturbance. So please, far fortunate you are in such a era where you have a lot of knowledge in terms of the Google or in terms of the professionals. When we have started our career, we don't have both the things, neither Google platform, neither personal platform. So certainly any curriculum which is made out by a university or institution having certain limitations, and that curriculum generally made out to different universities and UCG and others. So UGC. So it's a limitation. But yes, it's unfortunate in Indian context. Our curriculum didn't have any personal exposure and experience for that subject. That's why we are lagging and facing such issues. But as on today, as we have started this course, just keeping this mind, educational institute didn't have that exposure and experience. And even teachers didn't have that industrial experience. So to mitigate this issue, we come to at this level and trying to educate you. Now this is your responsibility to bring this knowledge more in all the means. Go deeper and deeper, try to study, go for the higher educations as per your choice. Don't stop your education only up to the bachelor, go for the masters or even beyond that. And once you go into the industry having certain protocols, certain challenges and limitation of experience sometimes. It's not like that you will join industry and you will get everything there. It's a fortunate that sometimes a person get a good seniors over there and they try to bring a lot of information and knowledge to the person, but it is not widely used by the industry as well. But at this stage, because I have personally served 25 years, Anurag and other team members served more than 10 years. So we are trying to bring all the knowledge, understanding all the pros and cons of the institutions of the industry and trying to present you. Maybe we are not 100%. I'm not still happy with that curriculum which we are presenting. But yes, I can assure you at least we are trying to serve you 50-60% or 70% of our efficiency, which can give you a lot of insight to what exactly in the EHS domain, in the ESG domain, in the safety domain, and now you can select and choose where you want to be go and do the more brainstorming and detailing in the subject. So Nishant, it's a very fortunate time for you and for all of 20-25% students there, and will continue this efforts further. But yes, now you are very much updated in terms of the skill, in terms of the education, in terms of the industry, and it will certainly help you for future. Yeah, team. I think you continue. It's at 6:25, 7:25. Thank you, Next sir. session may be delayed. Yeah, we will be in touch. Don't worry. Sir, I have a small question to Priyank sir. हाँ जल्दी से पूछ लो आप जल्दी से. हाँ सर. Sir, as a safety professional, how to manage a stress, sir? How to manage a stress? Yes, sir. Okay, Priyank sir देंगे. Okay. I think stress and safety professional both are different things. Stress can come at any of the level of the life.
Okay, sir. Once you come out from your family, you may be stressed. Once you start getting the education, you may be stressed. So it's up to you how you are going to be remove your stress. But if you are in stress, the first and most important thing is please discuss that stress or that point with someone, Okay, not sir. your friends, not your